Good afternoon, dear students. So welcome to my video lecture. So in today's video lecture we are going to study the Legender's linear differential equation. This is one of the special kind of linear differential equation. Okay, now we see the standard form of Legender's linear differential equation. As you all know, the standard form of ordinary differential equation. So स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का dny by dxn प्लस a1 dn minus 1y by dxn minus 1 प्लस a2 dn minus 2y by dxn minus 2 प्लस प्लस up to so on a and y equals to capital X, and here capital X denote some function of x, right? So this is the standard form of ordinary linear differential equation, right? Now we see the Legender's equation. What is the difference between this ordinary linear differential equation and Legender's equation? So if I add, suppose along with this nth order term, if I take the term ax plus b raised to power n, कौन सी टर्म मैंने यहाँ पर एडिशनली ली है nth ऑर्डर टर्म के साथ ax plus b raised to power n. Here a and b are constant. ये समझो अगर आपने 2x plus 3 raised to power n की टर्म यहाँ पर ले ली है. Okay, so similarly in n minus 1th order term we take 2x plus 3 to the power n minus 1. Then for n minus 2th order term we take 2x plus 3 raised to power n minus 2 up to so on. Okay, so इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं. So standard form is so ax plus b raised to power n, then dny by dxn plus a1 तो constant है as it is रहेगा because we are going to study ordinary linear differential equation with constant coefficients. Okay, so a1 into ax plus b raised to power n minus 1 dn minus 1 y by dxn minus 1 plus a2 ax plus b raised to power n minus 2 into dn minus 2 y by dxn minus 2 plus plus up to so on. आपकी लास्ट टर्म होगी a and y into capital equals to capital X. Okay, so the equation of this form is called as Legender's linear differential equation. Okay, now how to solve such equations? So in such a type of equations we use suitable substitution. तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म है, कौन सी टर्म है? ax plus b की सब पावर है ना, हर जगह पर ax plus b की पावर हमने ली हुई है. Okay, so we use the substitution for ax plus b. Okay, so here we use the substitution. So we put ax plus b equals to e raised to power z. तो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं ax plus b equals to e raised to power z. ओके, सो दैट z क्या आएगा? तो z अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे. सो बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट z इक्वल टू log ऑफ ax plus b. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ax plus b equals to e raised to z, so that z equals to log of ax plus b. Now we differentiate both sides with respect to x. So dz by dx equals to a derivative of this logarithmic term is 1 upon ax plus b into derivative of ax plus b क्या होगा, simply a. Okay, so here I write its derivative as a upon ax plus b. Okay, so this is value of dz by dx. बट हमें तो dy by dx चाहिए, d2y by dx square चाहिए, right? So from this we are going to construct dy by dx. Okay, now
dy by dx कैन बी रिटर्न एज, तो देखिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, सो इट कैन बी रिटर्न एज dy by dz इंटू dz by dx, है ना। अगर यहाँ से dz हटा दिया तो आपको फिर से क्या मिलेगा, dy by dx। बट अभी हमने dz by dx की वैल्यू निकाली है, सो हम dz by dx की जगह पर ये वाली वैल्यू अगर पुटअप करते हैं तो हमें मिलेगा dy by dx इक्वल्स टू a अपॉन ax प्लस b इंटू dy by dz। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ dy by dx। सिमिलरली we find value of d2y by dx square, also d3y by dx cube up to so on, but ये सब वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर ऑल द वैल्यूज, आपको ये सभी वैल्यूज लर्न करनी होगी। ओके, सो यहाँ पर dy by dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं a इंटू ए एक्स प्लस बी, या तो फिर हम थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करते हैं, तो अगर मैंने ए एक्स प्लस बी की टर्म इधर शिफ्ट कर दी तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी dy by dx की वैल्यू हमें मिलेगी a इंटू dy by dz। ओके, अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे कि इससे पहले हमने यूज किया था, d डिनोट करता था d by dx, बट अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास एक नया वेरिएबल आ चुका है, दैट इज द z। ओके, सो हियर वी डिनोट d by dz को अब हम क्या डिनोट करने जा रहे हैं, d डिनोट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट d डिनोट d by dz, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर d by dz को हम कैपिटल D से अगर रिप्लेस करते हैं तो सेम टर्म कैन बी रिटर्न एज ax प्लस b dy by dx इक्वल टू a इंटू dy। तो आपको याद रखना है ax प्लस b dy by dx को ही हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, a इंटू dy। अगर आपके पास टर्म है ax प्लस b स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, देन इट कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर d into d minus 1 into y। Okay, similarly ax plus b cube d cube y by dx cube can be written as a cube, then d minus 1 d minus 2। यहाँ पर क्यूब होने के कारण हम तीन टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे, d minus 1 d minus 2 into y up to so on। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सो हियर वी यूज द सब्स्टिट्यूशन, कौन सी सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर यूज की है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ax प्लस b इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर z, सो दैट z इक्वल्स टू log ax प्लस b, राइट। Also remember d denote what, d by dz। okay, and then remember these values, ax plus b into dy by dx is a into dy, then this ax plus b square d2y by dx square is a square d minus 1 into y up to so on। okay, so by substituting all these values in Legendre's equation, ओके, ये सभी वैल्यूज अब क्या करनी है आपको, फाइनली लीजेंडर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, सो दैट दिस लीजेंडर्स इक्वेशन रिड्यूस्ड इनटू ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड वी नो द वर्किंग प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन we reduce our Legendre equation to ordinary linear differential equation। तो इसी तरह से एक दूसरा भी इक्वेशन आता है, अगर मैंने a को 1 से रिप्लेस किया और b को अगर मैंने 0 से रिप्लेस किया, क्या किया, a को अगर 1 से रिप्लेस किया, b को अगर मैंने 0 से रिप्लेस किया, then we will get new equation and that new equation is known as Cauchy's linear differential equation। ओके, जिस इक्वेशन में
कोएफिशिएंट्स ax प्लस b के फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं लीजेंडर्स इक्वेशन। और अगर मैंने a को 1 से b को 0 से रिप्लेस किया, देखते हैं हम क्या होगा। अगर मैंने a की जगह पर 1 रख दिया, तो बाय पुटिंग a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0, देखते हैं हम इस इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे। मतलब आपकी जो ax प्लस b की टर्म है, अब ये बन जाएगी 1 इंटू एक्स, दैट मीन्स x प्लस 0, दैट मीन्स ax प्लस b चेंजेस टू ओनली x। अब जहां पर आपको ax प्लस b दिख रहा है उसे हम रिप्लेस करेंगे सिंपली x से। ओके, सो दैट वी गेट न्यू इक्वेशन। अब हम देखते हैं न्यू इक्वेशन कौन से फॉर्म में मिलेगा। सो ये ब्रैकेट जो है अब x से रिप्लेस हो जाएगा, सो वी गेट x रेज टू n dny बाय dxn प्लस a1, फिर से ये ब्रैकेट x से रिप्लेस होगा, x रेज टू n माइनस 1 dn माइनस 1 y बाय dxn माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी a2 x टू द पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y बाय dxn माइनस 2 प्लस प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म इज a and y इक्वल्स टू कैपिटल X। एंड देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट्स है उनके साथ में हमारे पास x की पावर है। इफ देयर इज पावर ऑफ x, then that equation is said to be Cauchy's linear differential equation, या तो फिर आप सिर्फ Cauchy's differential equation भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने दो टाइप्स के इक्वेशन यहाँ पर देखे हैं। वन इज लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज Cauchy's linear differential equation। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लीजेंडर्स में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ होती है ax प्लस b की पावर, और Cauchy's में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ होती है x की पावर वाली टर्म्स। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अगेन वर्किंग प्रोसीजर सेम रहेगी। क्या चेंजेस हो गए यहाँ पर, जैसे कि हमने ax प्लस b के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, इन सिमिलर वे यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो वी पुट x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z, क्योंकि अपने पास तो ax प्लस b नहीं है, यहाँ पर क्या है x की टर्म। सो वी पुट x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। सो z क्या आएगा, सो z इज इक्वल्स टू log x, है ना। अगर दोनों तरफ हमने log ऑपरेट किया तो हमें क्या मिलेगा, log x equals to log of e raised to power z, but log and exponential, these are two anti-processes, so they nullify effects of each other। so logarithm and exponential cancel हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा z। okay, and hence we get z equals to log x। अब फिर से अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से अगर आप नोटेशन यूज करते हैं d इक्वल्स टू डी बाई डी जेड, ओके, और फिर से यहाँ पर आपकी टर्म्स आएगी अब x dy बाई dx को आप रिप्लेस करेंगे dy से, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस देखिए क्या होगा, x dy बाई dx इज रिप्लेस बाई dy, देन x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा d माइनस 1 इंटू वाई से, x क्यूब d क्यूब y बाई dx क्यूब रिप्लेस हो जाएगा d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू वाई से, अप टू सो ऑन। ओके, सो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एंड ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन दिस Cauchy's linear differential equation reduced into ordinary linear differential equation, and we use our usual methods। okay, now here I take few examples of Legenders as well as Cauchy's linear differential equation। so example is solve x square d2y by dx square plus x dy by dx plus 1 equals to sin 2 log x। तो सबसे पहले केयरफुली
आपको इक्वेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेदर इट इज लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था, लीजेंडर्स में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ होती है ax प्लस b के फॉर्म में पावर्स, है ना, और वैसे कॉचीज में हम लेते हैं x की पावर्स अलोंग विद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अलोंग विद d2y by dx square there is x square, along with dy by dx there is x, means definitely it is Cauchy's linear differential equation. Okay, so first of all we identify its type. So it is Cauchy's linear differential equation. और जनरली कॉचीज में हम क्या करते हैं, वी पुट x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z, और अगर आपके पास लीजेंडर्स है तो आप पुट करते हैं ax प्लस b इक्वल्स टू e रेज टू z। तो यहाँ पर हम कॉचीज का टाइप फॉलो करेंगे, है ना। सो वी पुट x इक्वल्स टू e टू द पावर z, सो दैट z की वैल्यू होती है, सो बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स z इज इक्वल्स टू log x, okay, and also here capital D denote d by dz, remember this thing. Now due to this substitution हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, x dy by dx, तो x dy by dx होता है d into y, then x square d2y by dx square is equals to d minus 1 into y। बस हमें इन दोनों टर्म्स की भी जरूरत है। ओके, सो वी यूज दिस सब्स्टिट्यूशन हियर सो दैट आवर इक्वेशन reduces to, so given equation reduces to, अब x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे d माइनस 1 इंटू वाई से, प्लस x dy by dx की जगह पर लिख देंगे dy, प्लस लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू log x। अब log x की जगह पर हम रख देंगे z, log x की वैल्यू क्या है z, सो हियर वी गेट साइन ऑफ 2z। मतलब हमें क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन वाज इन टर्म्स ऑफ x, now reduce the equation involve new variable z, so अपना जो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा है z। तो अब तक हमने देखा था कि अगर आपके रूट्स 2 माइनस 2 है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे लाइक c1 e रेज टू पावर ट्वाइस x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस ट्वाइस x, लाइक दिस, but instead of x here we have new independent variable that is z. That's why while writing complementary function here we use new independent variable z. तो आपको सॉल्यूशन जो है तो पहले आप z में लिखेंगे और बाद में z की वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो z की वैल्यू कितनी है log x, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ z। ओके, सो इन दिस वे वी राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, सो आपको कॉन्शियस रहना है, डोंट यूज x, नाउ हियर वी यूज z। ओके, नाउ वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अब आपका जो कॉचीज इक्वेशन है अब वो रिड्यूस होने जा रहा है ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, सो यहाँ पर पहले तो हम y कॉमन ले लेते हैं, सो बाय टेकिंग y आउटसाइड we get d into d minus 1, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो we get d स्क्वायर माइनस d, ओके, प्लस d, यहाँ पर भी हमने y कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू साइन 2z, देन प्लस d माइनस d गेट कैंसिल, सो सिंपली रिमेन d स्क्वायर प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू साइन 2z। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है
जगह पर अब अपने पास क्या है, z। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एंड वी नो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। So for complementary function, first we write its auxiliary equation. So its auxiliary equation is d square plus 1 equals to 0. So that d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस i, और प्लस माइनस i को ही आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस i. Okay. Now roots are complex. So corresponding to this complex root, we write complementary function. So it is e raised to power 0 x, but अब अपने पास x नहीं है, we take here z. So e raised to 0 z into c1 cos of बीटा x लेते थे हम. अब बीटा की वैल्यू कितनी है, i का कोएफिशिएंट क्या है 1, so बीटा इज 1. So here we take cos of x. अब फिर से x नहीं लेना है तो क्या लेना है z. ओके, एंड सेकेंड टर्म विल बी c2 sin z. ठीक है, e raised to 0 z को ही आप 1 भी ले सकते हैं. So our CF becomes c1 cos of, अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z क्या है log x. So c1 cos log x plus c2 sin log x. This is our complementary function. Now we find particular integral. So particular integral is 1 upon d square plus 1. अब हम इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं. कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन साइन 2z. ओके, सो ऑपरेटिंग ऑन साइन 2z. अब ये हो गई आपकी साइन ax की केस. तो उस केस में हम जनरली क्या करते हैं, पहले तो डिनोमिनेटर को डी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बट ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर, सो नो नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट. नाउ we replace d square by minus of a square, but a मतलब क्या है, z का कोएफिशिएंट कितना है 2. So we replace d square by minus of a square, मतलब minus of 2 square से रिप्लेस करेंगे. और minus of 2 square means what, minus 4. Okay, so replace d square by minus 4. So pi equals to 1 upon minus 4 plus 1 sin 2z, and that is equals to minus 3. So minus 1 upon 3 sin 2z. Okay, and again re-substitute value of z. Z की वैल्यू क्या है log x. So आपका pi आएगा minus 1 by 3 sin of 2 log x. And finally we write complete solution. As we know, complete solution होता है CF plus PI. So y equals to CF है अपना C1 cos log x plus C2 sin log x plus PI है अपना minus 1 by 3 sin 2 log x. So this is a required complete solution. Okay, so आपको ध्यान में आया होगा कि कितना इजीली हमने इस इक्वेशन को ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मेथड्स वी सॉल्व दिस ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, now I will take second example. Solve 2x plus 1 square d2y by dx square minus 2x plus 1 dy by dx minus 12y equals to 6x. फिर से अगर आप ऑब्जर्व करें तो along with d2y by dx square इसके साथ में आपके पास है 2x plus 1 whole square, then dy by dx के साथ में है आपके पास 2x plus 1 bracket raised to 1,
मतलब यहाँ पर जो पावर्स है ax प्लस बी के फॉर्म में है। अगर आपके पास ax प्लस बी के फॉर्म में पावर्स रहती है देन इट इज Legendre's linear differential equation. So definitely this is Legendre's linear differential equation. So here we use the substitution. Substitution होती है जो आपके पास टर्म है ax प्लस बी के फॉर्म में अगर टर्म है तो ax प्लस बी को हम रिप्लेस करते हैं e रेज टू जेड से। सिमिलरली यहाँ पर 2x plus 1 we put 2x plus 1 equals to e raised to power z, so that z की वैल्यू आएगी log 2x plus 1 and also one more thing d is equals to d by dz, right? और ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन हमें देखिए सेकेंड ऑर्डर तक के टर्म चाहिए, राइट? So due to this substitution 2x plus 1 dy by dx, जैसे कि हम लेते हैं ax plus b dy by dx के लिए हम लेते हैं a into dy, बट यहाँ पर a मतलब a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 2, so here it is 2 dy. Okay, also value of 2x plus 1 square d2y by dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी जैसे कि हम लेते हैं a स्क्वायर d माइनस 1 इंटू वाई, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर d माइनस 1 इंटू वाई। ओके, so due to this substitution our Legendre's equation reduced into, तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 d माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू, ऑलरेडी अपने पास एक माइनस 2 है, अब हम 2x प्लस 1 dy बाई dx इसको रिप्लेस करेंगे हम 2 dy से, so here we get 2 into dy माइनस 12y as it is इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अपने पास है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू e रेज टू z, तो यहाँ से 2x कितना आएगा, 2x इज e रेज टू z माइनस 1, राइट? एंड इफ वी शिफ्ट दिस 2 वी गेट x इक्वल्स टू e रेज टू z माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे e रेज टू z माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, तो वी गेट 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस यहाँ पर फिर से एक माइनस 4d आएगा माइनस 12 इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 इंटू e रेज टू z माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर आप 4 कॉमन अगर लेते हैं तो हमें मिलेगा d स्क्वायर माइनस d माइनस d, मतलब d माइनस d सॉरी माइनस d आएगा माइनस 2d माइनस, यहाँ से भी अगर 4 कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 e रेज टू z माइनस 1। अब ये जो 4 है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपना इक्वेशन आएगा अब d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू, जो 4 है इधर शिफ्ट कर देंगे, सो 3/4 इंटू e रेज टू z माइनस 1, या तो फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we get this equation. Okay, so we denoted equation number 1. So this Legendre's equation reduced into now ordinary linear differential equation. अब हमें इसकी प्रोसीजर मालूम है, so we find our complementary function, but complementary function लिखते समय हमें वेरिएबल कौन सा लेना है, z लेना है। Okay, so complementary function के लिए auxiliary equation फाइंड होगा, so its auxiliary equation is
डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलेगा d माइनस 3 इंटू डी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स d इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e रेज टू पावर 3 इंटू एक्स नहीं लेना है, क्या लेना है z, प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2z। या तो फिर आप z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, z की वैल्यू क्या है log 2x प्लस 1, ठीक है। तो अपना CF आएगा c1 e रेज टू पावर 3 log 2x प्लस 1 प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2 log 2x प्लस 1, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंटू log 2x प्लस 1 को ही आप लिख सकते हैं log 2x प्लस 1 होल क्यूब, राइट। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म भी है साथ में, तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसी टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब से। सिमिलरली दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू पावर माइनस 2, ओके। तो आप इसी CF को लिख सकते हैं c1 2x प्लस 1 होल क्यूब प्लस c2 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू पावर क्या आएगा माइनस 2। So this is our complementary function. Now we move towards particular integral. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा अपना, अब कौन सा इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, ऑपरेट होगा कौन से फंक्शन पर, 3/4 e रेज टू z माइनस 3/4। So these are two distinct kind of functions. One is exponential function, second is constant function. तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड की फर्स्ट केस, ओके। सो इन e रेज टू पावर ax फॉर्म वी रिप्लेस d बाय a। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं z के साथ में कोएफिशिएंट क्या है 1, सो वी रिप्लेस d बाय 1। सो बिफोर दैट वी ऑपरेट दिस ऑपरेटर टर्म बाय टर्म, ओके। दैट मीन्स वी गेट 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, ऑपरेट होगा फर्स्ट फंक्शन पर, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 ऑपरेट होगा सेकेंड फंक्शन पर, दैट मीन्स ऑन 3/4, ओके। अब यहाँ पर 3/4 तो कांस्टेंट है, हम इसे साइड में ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम d को रिप्लेस करेंगे हम a से, मतलब 1 से, ओके। So our particular integral becomes, तो फर्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, इन फर्स्ट टर्म हम d को रिप्लेस करने जा रहे हैं 1 से, और सेकेंड टर्म में रिप्लेस करने जा रहे हैं हम d को 0 से, बिकॉज सेकेंड टर्म में क्या है कांस्टेंट केस, और कांस्टेंट के केस में हम d को 0 से रिप्लेस करते हैं, राइट। तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, और इस 3/4 को हम साइड में लेते हैं, सो 1 अपॉन, अब d की जगह पर 1 रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 3, ओके, e रेज टू पावर z माइनस, अब हम सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, d की जगह पर 0 लिख देंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 0 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 3/4, ओके। सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 3 आएगा -4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3/4 इंटू 1 अपॉन -4, तो आएगा -3/16 e रेज टू z। यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन -3, ड्यू टू दिस माइनस साइन माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1 अपॉन 3 इंटू 3/4, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन 4, ओके। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट फाइनली हम क्या करेंगे, फिर से z की वैल्यू रख देंगे, तो z की वैल्यू क्या थी log 2x प्लस 1,
So particular integral becomes -3/16 e raised to power, या तो फिर आप डायरेक्टली e raised to z की वैल्यू लिख सकते हैं 2x plus 1 plus 1/4. So this is our particular integral. And finally we write its complete solution. So it is CF plus PI. So y equals to CF है अपना C1 2x plus 1 whole cube plus C2 2x plus 1 to the power -2 plus particular integral है -3/16 into 2x plus 1 plus 1/4. So this is required complete solution. So in this way, using some suitable substitution, we reduce Legendre's and Cauchy's linear differential equation to ordinary linear differential equation. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.